Hello, good morning students. Today we will revise India, size and location. This is the chapter of 9th class, first chapter of geography with some MCQs, right? So let's start with the first question. Question number 1. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer on. This is the Earth, 0 degree equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, 23.5 degree north, 23.5 degree south. So it is tilted like this, you know that Earth is tilted, and on which date the sun fall directly on the Tropic of Cancer, means Tropic of Cancer. When Earth is tilted towards sun, it means northern hemisphere is tilted towards sun in June. So on 21st June is the correct answer, B. Sun fall directly on the Tropic of Cancer. A piece of land separated from the main continent by a natural land barrier is called. What is that called? Country, plains, isthmus and subcontinent. Country, you know that this is the country or state, we can say. Plain area, you identify. Isthmus, this is the piece of land that divides two big large water bodies called isthmus. You have to remember, आपको याद रखना है. Subcontinent means it is separated from the continent. Separated from continent, a piece of land. This is the piece of land from the main continent. It is separated by a natural land barrier. For example, India. India is subcontinent. India subcontinent means this is divided by Himalaya from Central Asia and from rest of the part of Asia. So this is the subcontinent consisting of India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, etc. So this is Indian subcontinent. So D is the correct answer. I hope that you are understanding with the example. My pen friend hails from a country that is not a part of SAARC. Just you have listened about the SAARC. Which of these countries would that be? SAARC. First of all, you should know about SAARC. South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC. It was established in 1985 in Dhaka, the capital of Bangladesh, but its headquarter is Kathmandu. Is at Kathmandu. You have to remember, dear students. The headquarter is at Kathmandu, and it was established in 1985 by 7 countries. 7 members were there at that time. 7 countries. Now there are 8 members of SAARC. Clear? So which of the following countries is not a member of SAARC? India, Singapore, Maldives, Sri Lanka. So B is the correct answer. Singapore is not a member of SAARC. So which are the members of SAARC? India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, and 8th country is Afghanistan. Afghanistan is 8th country, right? That becomes the member of SAARC. Next is, in which of the following places would you find the least difference in the duration between day and night? Time of days and nights. Difference is very less. It means on near equator. On equator, difference is very less. If we talk about equator, so on equator 0 degree, days and nights are equal, right? So Kanyakumari is nearest to equator among these following options. Kanyakumari is situated at 8 degree 4 minute northern latitude. Ladakh is about 36 degree 37 degree. Srinagar also. So A is the correct answer. Hardly there is 40 or 45 minutes difference is there during days and night times. But if we ask about Srinagar and Ladakh, so there might be sometimes 3.5 and sometimes 4 hours difference is there between days and nights, because these are far from equator. ये थोड़े equator से दूर पड़ते हैं इसलिए. The longitude passing approximately centrally through a country is used to record the weather forecast. किसी भी country से अगर longitude अगर पास होती है तो हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? Longitudes. देखो ये इक्वेटर्स होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं,
like this. These are the latitudes and these are the longitudes. So latitudes are used for the particular location of a place, लेकिन जो longitudes हैं वो टाइम के लिए हम उसको मेज़र करते हैं. वेदर फोरकास्ट, पॉपुलेशन, लोकल स्टैंडर्ड टाइम, तो इसको लोकल स्टैंडर्ड टाइम के लिए यूज़ किया जाता है. सी इज़ द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. विच स्टेट लाइज ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ गारो खासी हिल्स. गारो खासी हिल्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, एंड दैट इज़ द विंडवार्ड साइड, क्योंकि ये दोनों ही साउथ वेस्ट से आने वाली हवाएं मानसून और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली मानसून विंड्स जो हैं वो यहाँ पे मर्ज करती हैं और दोनों ही यहाँ पे काफ़ी सारा वाटर लेके आती हैं. सो दैट एरिया इज सिचुएटेड इन मेघालय. सी इज़ द करेक्ट आंसर. इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड. बिल्कुल सिंपल है, 2.4%. 2.4%. द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज. What is the capital of Odisha? It's very easy question. Thiruvananthapuram. It is situated in Kerala. भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, तीनों ही सिचुएशन जो प्लेसेस हैं वो ओडिशा में सिचुएटेड हैं, बट जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर में है. दिस इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर. द कैपिटल इज़ इन भुवनेश्वर. द हेडक्वार्टर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज. दिस इज़ वन काइंड ऑफ कैपिटल. अंडमान एंड निकोबार के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं? कावारती, पौंडीचेरी, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा. तो इनमें से ये तीनों प्लेसेस अंडमान निकोबार में नहीं है. पोर्ट ब्लेयर जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर, सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर्स इज द स्मॉलेस्ट. इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज आर नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश. ऑल आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. लेकिन इनमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट किस में? एरिया में, राइट, इन एरिया. स्मॉलेस्ट इन एरिया. नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान. सी इज़ द करेक्ट आंसर. भूटान इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि इसका एरिया काफ़ी कम है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया इन इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे छोटा कौन सा है? त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, मिजोरम. सिक्किम जो है वो पॉपुलेशन में सबसे छोटा है और गोवा जो है वो एरिया में सबसे छोटा है. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर इज़ कॉल्ड. अगर हम इक्वेटर से, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएं या इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएं तो हम किस चीज़ से मेज़र करेंगे कि कितनी डिग्री नॉर्थ में, कितनी डिग्री साउथ में? लैटिट्यूड, राइट. हाउ मैनी लैटिट्यूड्स नॉर्थ, हाउ मैनी लैटिट्यूड साउथ. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज सिचुएटेड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये क्या आ गया? लैटिट्यूड. से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट northern latitude. So in this way latitude is the angular distance we measure north or south from the equator, that is latitude. By which geographical feature is India bounded in the northwest, north and northeast. अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो और नॉर्थ और फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे कौन सा जोग्राफिकल फीचर है? दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेट्यूज, यंग फोल्ड माउंटेन्स, डेजर्ट. तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा सी. सी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में भी माउंटेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदू कुश माउंटेन का एग्जांपल ले सकते हैं, और इसी तरह से नॉर्थ में भी माउंटेन है, हिमालय माउंटेन हो गया, और नॉर्थ ईस्ट तक जो है हिमालय माउंटेन आपका जाता है, राइट. तो ये हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स, दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन. कहाँ पे सिचुएटेड है ग्रीनविच, जिसको हम GMT भी कहते हैं? ये जिनेवा, ग्रीनलैंड, लंदन एंड न्यू दिल्ली. तो ये आएगा आपका लंदन. सी इज़ द करेक्ट आंसर. इट इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. आपको याद रखना है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लाइन. विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नन ऑफ अबाउ. अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें तो ये तो साउदर्न हेमिस्फीयर में है. इक्वेटर की अगर आप बात करेंगे तो 0 डिग्री है, ये इंडिया से पास ही नहीं होती. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड इट डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल halves. Understand? 2 equal parts.
और ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दोज स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो सबसे पहले आ गया आपका गुजरात, राजस्थान, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, आफ्टर दैट छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस तरह से ये 8 स्टेट्स हो गए हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ द वर्ल्ड मैप। कहाँ पे सिचुएटेड है? सेंटर में, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट साइड में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, वर्ल्ड मैप को देखोगे तो इंडिया जो है वो ये यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो इंडिया लगभग यहाँ सिचुएटेड है। अंडरस्टैंड, लगभग यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मैप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स बाय द। अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। देखो एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बन रहा है और एक साउदर्न हेमिस्फेयर। सो दिस इज बाय इक्वेटर। लेकिन ऐसे भी इंडिया डिवाइड, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो रहा है ईस्ट और वेस्ट। तो ये दो हाफ पार्ट बन गए। ये किस वजह से बने? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वजह से। सो दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन। इट इज़ कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, 0 डिग्री, जो लंदन से निकलती है। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी भी इसको बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज। द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कोहिमा, अगरतला, रायपुर एंड आइजोल। सबको पता होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। देखो अरुणाचल प्रदेश ये इस तरफ, उसके बाद में फिर आप आ जाएंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस तरह से आपका पूरा ये फ्रंटियर बन गया। तो इस तरफ दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट, राइट, दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट में हमारा कौन सा पड़ता है? चाइना तो नॉर्थ में पड़ गया, भूटान भी नॉर्थ में पड़ गया, सेंट्रल नॉर्थ, एंड नेपाल ऑल्सो सेंट्रल नॉर्थ। तो म्यांमार इज़ द करेक्ट आंसर। इधर क्या है? म्यांमार, दैट इज ऑल्सो नोन एज बर्मा अर्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच जियोग्राफिकल फीचर बाउंड्स इंडियाज मेनलैंड साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो साउथ, ये इंडिया का जो आप अगर पार्ट आप देखेंगे, सो दिस इज द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो इन दिस पार्ट 22 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो लगभग ये यहाँ आएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये कौन सी फीचर से बाउंड हो रहा है? दिस इज यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गए। प्लेट्यूज सेंटर में आ गया। डेजर्ट ये वेस्टर्न पार्ट में आ गया। और बच गया ओशियन, ये पूरा ओशियन है, अरेबियन सी, वेस्ट, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। सो दिस इज द ओशन, डी इज द करेक्ट आंसर। द अर्थ सरफेस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ एंड 23 डिग्री 5 मिनट साउथ इज कॉल्ड द अर्थ सरफेस बिटवीन। ये जो आपका इस डायग्राम से दोबारा समझें, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो बीच का एरिया है, व्हाट इज दिस रीजन इज कॉल्ड? दिस इज ट्रॉपिक, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ट्रॉपिकल रीजन हो गया। दिस इज द ट्रॉपिकल जोन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। Come to the next question, dear students. Which of the following is the oldest route of contact between India and other countries? आपको पता है कि पुराने टाइम में जो ट्रेड होता था, that is only due to the Silk Route, or these kinds of routes were particularly based on sea. Understand? तो ocean route जो है वो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि लैंड रूट्स के तो इतने ज़्यादा सोर्सेज हमारे पास नहीं थे ट्रांसपोर्ट के। एयर रूट तो बिल्कुल था नहीं। सो बच गया ए, ओशियन रूट्स। The difference in the duration of day and night increases। अगर हम बात करें कि डे और नाइट में डिफरेंस जो है वो सबसे कम कहाँ होता है, या ये कह दें कि डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन 0 डिग्री इक्वेटर। तो जो एरिया यहाँ इसके आसपास में होगा वहाँ पे क्या होगा? डे और नाइट के बीच में डिफरेंस जो वो कितना होगा? कम होगा, लेस होगा। और बढ़ेगा कब? जब हम यहाँ से इधर जाएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे। तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा, डिफरेंस विल बी इंक्रीज। अंडरस्टैंड? तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, साउथ टू नॉर्थ। तब जाके आपका डिफरेंस जो है वो, ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। वेयर इज़ द मालाबार कोस्ट? इंडिया इज सराउंडेड बाई सी फ्रॉम 3 साइड।
मालाबार कोस्ट कौन सा है, ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ मुंबई कोस्ट से लेके और गोवा तक ये आपका कोंकण हो गया, कोंकण कोस्ट, राइट, कोंकण या कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। और गोवा से लेके और न्यू मैंगलोर तक ये आपका कन्नड़ हो गया, क्योंकि कन्नड़ कोस्ट हो गया, कर्नाटका, कन्नड़ लैंग्वेज। और ये लास्ट में जो बच गया आपका केरला वाला जो है, दैट इज़ मालाबार कोस्ट, दैट इज़ मालाबार कोस्ट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरफ दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, इधर नॉर्दर्न सरकार हो गया, इधर कोरोमंडल कोस्ट हो गया। तो कोरोमंडल पूछे तो तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट है। ओडिशा वाला जो, ओडिशा आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्ट है, दैट इज़ नॉर्दर्न सरकार। सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड। अगर कोई भी ज़मीन का टुकड़ा, लैंड एरिया है, एंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, सो उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। पेनिनसुला तो बिल्कुल नहीं कहते। आइलैंड, प्लेट्यू, डेल्टा। तो इसमें बी आ जाएगा आपका आइलैंड। बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये लैटिट्यूड्स, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। सी इज़ द करेक्ट आंसर। कवारत्ती इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ, इट्स वेरी सिंपल थिंग, कर्नाटका, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये पोर्ट ब्लेयर आ गया। एंड आफ्टर डी इज़ द करेक्ट आंसर, द लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now we are coming to the next question. The Indus drains into the fill in the blank and throw. So in this way we have to understand Indus drains. Indus drains means Indus river is derived from the Mansarovar lake in Tibet, and that flows towards Jammu and Kashmir, and then goes into Pakistan, and then flows into Arabian Sea. So B is the correct answer, Arabian Sea and Pakistan. Come to the second last question. India is connected to Europe through the, India and Europe were connected through the sea route, but it was very lengthy. But after that, due to opening of Suez Canal, approximately 7,000 kilometer length was reduced between India and Europe. So Gulf of Khambat is situated near Gujarat. Pak state is situated between Sri Lanka and India. Gulf of Mannar near Sri Lanka. So the correct answer is C. Suez Canal was opened in 1869. You have to remember, dear students. So come to the last and final question. The standard meridian of India is, it's very simple question. If you see that this is the location of India, 0 degree equator, and this one is 0 degree longitudinal. So India is located here, and from here this line is passes, and that is 82 degree 30 minute eastern longitude. And that because that line divides India into two equal halves, so in entire India the same kind of time, uniformity and similarity in time is implemented through this line. So and this is 5.5 hours, 5 hours and 30 minutes ahead of the 0 degree longitude, means GMT. If it is 12 o'clock in afternoon at 0 degree, so it is 5:30 p.m. in India because of this line, because we have the standard meridian 82 degree 30 minute eastern. So D is the correct answer, right? 82 degree 30 minute east. So dear students, in this way we have revised this chapter with the help of these MCQs. Still, if you have any doubt, you can ask me by writing in the comment box. Thank you. Have a nice day.